Assalamualaikum, Dr. Hassan Rao. Assalamualaikum, Dr. Thank you for taking our time and joining us today. I am Ilahil Jubair, and along with me we have Aliza Akhtar. Before starting the interview, we would like you to grant us permission for the interview. Permission granted. Thank you so much. We are a group of Global Perspectives O-level students from Beacon House, Town Senior Campus, conducting research under the topic of malnutrition. We would like you to please introduce yourself. Well, my name is Dr. Hassan Daud. I'm a public health specialist, and what I'm doing at Indus Hospital Network is I'm manager for primary care program. Currently looking after all the Punjab sites and upside North region. Thank you. We appreciate your presence. Beginning with the interview, can you tell us a little about the current situation of malnutrition in Pakistan and how it compares internationally? Well, according to the current situation of Pakistan, I would like to say Pakistan is in deep trouble right now with the malnutrition aspect, because we have 14% stunting right now, we have 17% wasting, we have 27% underweight children, and 9.5%, around 9.5% overweight children. So these all accounts come into the factors of malnutrition. That's the current scenario of Pakistan. As you mentioned stunting in your answer, so do you think that what are the root causes of undernutrition? Do you think stunting is the root cause of undernutrition? Stunting is one of the root cause of you can say malnutrition, but it's not actually the perfect reason we can say कि malnutrition stunting की वजह से ही है. Stunting has its own reasons because of the fact कि अगर आपकी mother malnourished है तो आपका बच्चा automatically malnourished की तरफ जाएगा. So the focus we have is कि हम 1000 days of life पे focus करते हैं. That is from the conception time से लेके जब mother pregnant होती है उस टाइम से लेके जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक का जितना टाइम होता है, तो वो जो पूरा पीरियड होता है that is known as 1000 days of life. So what we do is typically कि हम उस जो ड्यूरेशन है उसके अंदर हम लोग malnutrition को कवर अप करने की कोशिश करते हैं. So as you said that a mother's nutrition affects a child's nutrition, so how do you think it really affects a child? What I will say is कि अगर आपकी मदर malnourished है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बच्चा है वो भी इस तरह malnourished होगा. By malnourished I mean कि उसको हो सकता है it could be कि वो stunting की तरफ जाए या वो wasting की तरफ जाए. So what we have to understand is कि what is stunting and what is wasting. So stunting basically होती है कि उसको आप एज फॉर हाइट के ऊपर लेते हो और वेस्टिंग को आप वेट फॉर एज के ऊपर लेते हो. सो नॉर्मली होता ये है कि स्टंटिंग के अंदर आपकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, आपकी ब्रेन की ग्रोथ डेवलपमेंट, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो हिंडर हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो जिसकी वजह से आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ सही से कर नहीं पाते और उसके ऊपर आप कहीं किसी ना जगह पे अपने जो माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे ने अचीव करने होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. तो उनको बेसिकली कवर अप करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि हम कोशिश करते हैं कि उनकी malnutrition को दूर कर सकें. तो दे आर टिपिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम malnutrition को असेस करते हैं. दैट इज़ मॉडरेटली एक्यूट malnourished, severely acute malnourished and severely acute malnourished with complications. सो इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि बच्चे जो malnourished होते हैं वो हमारे पास जब आते हैं तो हम इनको OPD के थ्रू भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको इनडोर अपने पास रखते हैं और उनकी कोमॉर्बिडिटी को दूर करते हैं और साथ ही साथ उनकी जो malnutrition होती है उसको कवर अप करते हैं. सो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप malnutrition को टारगेट कर सकते हो बच्चों के अंदर. दैट इज़ अंडर 6 मंथ्स से लेके अंडर 5 के, क्योंकि जो 0 से 6 मंथ्स का पीरियड होता है उसके अंदर हम लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे लेके जाते हैं, उसमें कोई सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं की जाती. How do you feel the recent flooding in Pakistan will affect nutrition in children in the upcoming years? आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस वाइज आप पाकिस्तान बहुत ज़्यादा malnourished कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी कंसिडर किया जाता है. अब फ्लड्स को देखते हुए तो आई कैन सेफली एज्यूम कि ये जो आपकी जो रेशियो है ये आराम से 10 से 15% और बढ़ेगी ऊपर. इसकी वजह ये है कि अब क्योंकि लोग कैंप्स की तरफ रह रहे हैं, खाने पीने के उस तरह से रुझान नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्रॉप्स काफ़ी सारी डैमेज हो चुकी हैं, जो बाकी जो खाने पीने का सामान है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है और जो अगर मिलेगा भी तो वो बड़ी कम क्वांटिटी के अंदर मिलेगा. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक प्रेग्नेंट मदर अच्छा खाना नहीं खा रही होगी जिससे वो अपनी पूरी की पूरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को कवर कर सके, तो ऑटोमेटिकली अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो वो 100% malnourished की तरफ ही जाएगा. तो ये वी कैन सेफली अज्यूम कि 10 से 15% बढ़ेगी malnutrition पाकिस्तान के अंदर. So do you think that preventing stunting should be a priority of any government, and why should it be a priority? Preventing stunting is the main priority right now with the government. और ये वर्ल्ड ओवर भी स्टंटिंग के ऊपर ही सारा फोकस किया जा रहा है, बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये आपकी ग्रोथ हिंड्रेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा
मेजर रोल प्ले करती है और आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो उनको आप कवर अप नहीं कर पाते ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। तो स्टंटिंग तो इन एनी केस सारी गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फोकस भी सिर्फ स्टंटिंग के ऊपर ही है और सारा काम भी उसी के ऊपर किया जा रहा है किस तरीके से उसको रोका जा सके। How does undernutrition affect the upcoming of a child? एज ए सेड अर्लियर कि अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो बच्चा अपने जो उसके जो ग्रोथ प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाएगा, उसके जो मॉनिटरिंग चार्ट्स हैं उसके अंदर वो पूरा नहीं उतर पाएगा। तो अगर उसकी हाइट कम रह जाती है या अगर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं होती तो वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आपकी जो ज़िंदगी में चलती हैं उसको पूरा ही नहीं कर पाएगा। सो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है वो काफ़ी जो अपने नॉर्मल एज ग्रुप के बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है उसके लिए। So, in your opinion, what is the best way to prevent undernutrition in our country? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए अगर आपके अंडर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हो दैट इज़ हेल्दी मदर्स, क्योंकि अगर आपकी हेल्दी मदर्स हैं तो हेल्दी बेबी है। सो जो आप प्रेग्नेंट मदर्स में आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इज़ शी प्रोन टू मैल न्यूट्रिशन, कि अगर वो उसके अंदर जा रही है तो आप पहले सबसे पहले मदर को मेक श्योर करते हो कि वो हेल्दी है। अगर मदर हेल्दी होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। तो उसके अंदर हमारे पास एक टाइम होता है जैसे मैंने पहले बताया था 1000 डेज ऑफ लाइफ का, जिसके अंदर हम लोग फ्रॉम कंसेप्शन से लेके 2 साल तक की उम्र के बच्चे को हम पूरा का पूरा असेस करते हैं। उसके अंदर भी मेक श्योर करते हैं कि बच्चा अगर मैल नरिश्ड है तो वो उसमें से बाहर निकल के आ सके और वो अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सके और वो एक वापस हेल्दी रूटीन के अंदर जा सके। तो दैट्स द ओनली वे वी कैन फिगर इट आउट कि आप मैल न्यूट्रिशन को बच्चों में किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। Can you give an example of malnutrition which you come across in any public sector hospital? हम डेली बेसिस के ऊपर भी सी मैल नरिश्ड बच्चे आ रहे होते हैं हमारे पास, क्योंकि वो किसी न जगह पे अगर उनको ब्रेस्ट फीडिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही उनकी, अगर 6 मंथ तक उनकी दूसरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की तो दे आर प्रोन के वो हो सकता है कि वो मैल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिनके मदर्स जो होते हैं या फादर जो हैं वो सही से उनको खाना नहीं प्रोवाइड कर पाते जिसकी वजह से वो मैल नरिश्ड रहते हैं। तो ये तो हमारे डेली बेसिस पर हम रोज़ाना देख रहे होते हैं हमारे क्लिनिक्स में। So, from a survey that we conducted, we concluded that an unhealthy society leads to limit work opportunities. How? लिमिट वर्क अपॉर्चुनिटी इस तरह से हो सकती है कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, उसकी अगर ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, अगर उसकी बॉडी ग्रोथ सही नहीं है, ही इज़ नॉट एनर्जाइज इनफ कि वो लेबर एक्टिविटीज़ कर सके, तो पहले आपकी लेबर पे मार खाओगे। फिर अगर ब्रेन डेवलपमेंट पूरी नहीं है तो आप डेवलपमेंट सेक्टर की साइड पे या अगर आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी MSD की साइड पे जाते हो तो वहाँ पे भी आप मार खाओगे। सो आपकी अगर बेसिक डेवलपमेंट ही पूरी नहीं हो रही तो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में घुस जाओ वहाँ पे यू विल बी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो वो तो एक बेसिक सी चीज़ है, उसमें आप मारी हो। Do you think undernutrition is a curable disease? If yes, how long does it take the person to become healthy? And what is the procedure to treat them? अंडर न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच प्रेवलेंट और इसके ऊपर तो क्यूरेबल तो ये है ही है अगर आप उसको टाइमली असेस कर सकें और आप उनको उनके हिसाब से सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड कर सकें, आप उनको नॉर्मल फूड की तरफ लेके जा सकें। तो अगर तो वो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कवरअप हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपने उनकी बेसिक न्यूट्रिएंट वैल्यू देखनी होती है। अपार्ट फ्रॉम द फैट आपने उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी कवरअप करना होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं तो आप मैल नरिश्ड से तो बाहर आ सकते हो ऑटोमेटिकली। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? My question was, what is the procedure to treat them? नॉर्मली द प्रोसीजर इज कि जो भी हमारे पास आते हैं हम उसके पहले उसके टूल्स होते हैं, वी हैव आवर ओन एंथ्रोपोमेट्री टूल्स, इनके थ्रू हम ये असेस करते हैं कि बच्चा वाकई मैल नरिश्ड है या मदर मैल नरिश्ड है या नहीं है। सो सिंस अगर वो मैल नरिश्ड के अंदर आते हैं तो हम उसका एक तरीका होता है हमारे पे, वी हैव सम टूल्स जिसमें हम वॉक होता है, जिसमें फिर हम लोग वेट देखते हैं, एज देखते हैं, जी स्कोरिंग हमारे पास अपने चार्ट्स हैं जिनके थ्रू भी असेस कि वो मैल नरिश्डमेंट के अंदर आता है कि नहीं आता। तो उसके हिसाब से फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको कुछ सप्लीमेंट्री फूड्स देते हैं। RUTF होता है दैट इज़ रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस याद आ रहे हैं तो हम उनको F75 F100 देते हैं। तो नॉर्मली ये जो होते हैं हाई कैलोरी इंटेक डाइट्स होती हैं जिससे आपकी बच्चे की जो एनर्जी है वो फ़ौरन बहाल होती है, उसका वेट जल्दी गेन अप होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री फूड्स होते हैं। इसके अलावा हम उनको कहते हैं कि नॉर्मल खाने तो जितना हो सके जल्दी लेके आ सकें। तो ये हमारा तरीका होता है कवरअप करने का। That's the same we use for mothers as well. Thank you so much for taking our time for Thank this you. out of your busy schedule. It was a very informative interview. Thank you. Before we end our session, do you have any questions about our GP project? So basically, what you guys are going to present with it? What are you guys present? What are you guys going to present with it? कि आप स्टंटिंग पे फोकस कर रहे हैं, वेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं या एज अ होल पूरे के पूरे मैल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे No, फोकस कर रहे हैं? overall, we're going to cover overall. क्या कह सकते हैं? Overall हम cover करेंगे.